राइट, सो जस्ट क्विकली रिवाइज द जीडी बेसिकली। टिंकू, जो जीडी होता है बेसिकली दैट इज ग्रुप डिस्कशन, और वो होता है बेसिकली 8 से 9 लोगों के बीच में। बट फॉर्चुनेटली वी आर प्रैक्टिसिंग राइट नाउ इन न्यूपीडिया, तो हमारे पास 13-14 कैंडिडेट आराम से हैं। ठीक है, तो देयर इज नो वरी अबाउट दैट कि जो यहाँ पे तो 14 कैंडिडेट्स हैं। फाइनल्स में हमेशा 8 से 9 लोग होते हैं। ठीक है, तो 8 से 9 लोगों के बीच में बेसिकली यू हैव टू डिस्कस ओवर अ स्पेसिफिक टॉपिक। आपका टॉपिक पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकता है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी करंट रेलेवेंस सेंसिटिव टॉपिक एनी काइंड। ठीक है, you need to be just say discuss your opinion, your point of view on that particular topic. ठीक है, तो आपको वन बाय वन बेसिकली डिस्कस करना है टॉपिक। 1 पर्सन फॉर द इंट्रोडक्शन, 1 फॉर द कंक्लूजन। अगर आप बेसिकली इनिशिएट कर रहे हो इंट्रोडक्शन करने के लिए, तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है। अगर आप बेसिकली इंट्रोडक्शन करते हो तो आपको एक लाइक इनिशिएटिव लेते हो तो आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है। प्लस अगर आप कंक्लूजन करने के लिए लेते हो तो भी आपको प्लस पॉइंट मिलता है। बट आप एक ही चीज कर सकते हो, या तो कंक्लूजन कर सकते हो या इंट्रोडक्शन कर सकते हो। रेस्ट आपको सबके साथ पार्टिसिपेट करना होगा। ऐसा नहीं आपकी अब दोनों अपॉर्चुनिटी आप ले लो। ठीक है, इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट मैं आपको बता देती हूँ। दैट इज बेसिकली ग्रीटिंग्स। ठीक है, योर नेम, नेम ऑफ योर ग्रुप डिस्कशन टॉपिक, and after that any meaning, definition or any generic view about the topic. After that your point of view, that what is your point of view on that particular topic, and after that open the house for discussion। सबको invite करना है participation के लिए। all right, Yes, that is ma'am. basically All right. the format of GD। ठीक है, I think all our other candidates are quite aware about this, if I'm not wrong। Yes, ma'am. got my point? Yes, ma'am. ठीक है, सो बेसिकली फिश ही नहीं बनाना है। एंड ये मीटिंग जो बार बार मेरे को डिस्टर्ब करती है बीच में, आई डोंट नो व्हाई। ये रूम के साथ अपडेशन में कोई प्रॉब्लम है। अब मैं इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन करने की कोशिश करूँ बट मुझे मिल नहीं रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक मीटिंग में जो हमारी 40 आई थिंक 45 मिनट की मीटिंग है, तो उसमें हम अपना जीडी खत्म करें विद फीडबैक। ठीक है, क्योंकि आइडली जो फाइनल्स में वो आपको 20-25 मिनट में आपका खत्म कर देता है सारा कुछ मिला। And let me give you topic of today. That is basically paper leakage in India. Uh, Good evening, everyone. My name is Rajen Kumar Singh. I am glad to start the discussion. Today's topic is paper leakage in India. I think today's topic is very relevant. In my point of view, the paper leakage in India is a very big problem. It delays the whole process of any college admission or any job recruitment. Also create pressure on the family and the candidate. So I invite all of you to participate in the discussion. Yeah, good. We should first go into the root side, root cause of it, from where it happens and how it happens. Then only we Yeah, can discuss it. What is the what can the exactly. preventive measures we should keep on. So Yes. the root cause, maybe it should be involved in the some political invention should be involved there, or some uh, like corruption. Corruption is involved. So we should go on to the prevention of it, like AI inventions, AI and cloud computing things should be involved in that, so that no paper leakage should take place. What you say, guys? Ye- Yes, I yes, Ranjit, totally you are agree. right. Also, the I, examination centers are also involved in all these things. That generally, they became the part of, like, they were bribed and became the part of the this corruption Hmm. and all. So this is like a very big issue, which not only affects the students but also takes the trust of the normal public from uh, the entrance exam, like from the exam taking organizations and all, like NT and all. Yeah, I yes, want to Ranjit, put I some agree. Recent examples like examination which said So many we have political seen that interference are involved. Political interference are also involved, and the high authority which is setting the paper is also involved. yeah. In so many time, it is seen that the conflict of interest arises. The paper which is setting the paper, their child is also doing the same paper. मतलब जो पेपर सेट करा उनके बच्चे भी उसी पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जॉब के लिए या किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी अराइज होता है, पॉलिटिकल कनेक्शन का भी काफी चांसेस होते हैं।
Yeah, So for like that we we get should to are the decentralize like and गवर्नमेंट जॉब the और गवर्नमेंट farther इंस्टीट्यूट्स को बहुत Right. प्रायोरिटी दी जाती है हमारे सोसाइटी में। सो कैसे भी Yes, करके लोग गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि लोग पैसे बहुत देते हैं पेपर लीकेज के लिए, और इसके लिए it is एक true, the बहुत risk ही to reward ratio is too much here. So Uh, basically, think I we should should, continue with the recently I have statement of seen that Ankita that in the NEET Ankita examination, the is paper leak said that covered. Ankita I is think said I that think organizing body should be fair and good. That will prevent paper leakage in India. Like I think the if punishments someone are set also a not that stricter. paper, if someone set a paper, I mean to say, just like IIT set, just like our exam set by the IITs, the professor who's setting the paper, they don't know whose paper is coming on paper. That is the main root cause to avoid the paper leakage in India. Yeah, I also the okay. So online now paper I'm that times is the going continue to with the administration adopted by is all Ankita's not the statement aware that about the paper institutions can leakage. help in she that told that by conducting They online were examinations not there aware is a about the and paper AI leakage. tool or So I like don't think that advanced we should technology that completely detect blame on the that detect the paper leakage, but it's not quite efficient in the state-wise exam. Like if you consider the Rajasthan employee exam is exam CET, so there is a 24 lakh candidate appears in that exam. So it very difficult to conduct that exam on the state wise. So there might be not a good approach to conduct the exam as a मैं एक point और CBT add करना based I चाहता or हूँ। think like based. So मैं एक it's point और add करना चाहता हूँ only कि बहुत कभी option to काफी conduct the exam as a paper wise. In काफी the केसों news, में ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे संस्था को पेपर कराने के लिए दे दिया जाता है जिनके पास ना ही रिसोर्सेज होते हैं, ना ही इनके पास कोई एक्सपीरियंस होता है। अभी हाल ही में जो पेपर होता है, पुलिस एग्जाम होता है यूपी में, इतने सारे बच्चे थे, उनके एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो संस्था थी उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और अंततः पेपर लीक हो गया। I Yeah, I want to think we say should, It's a want to main say cause. something that और in एडवर्टाइजमेंट for अगर in और the एग्जाम recent डेट year, में we अगर have very seen फर्क होगा very I big in want the to add problem more that point like in the तो recent पेपर year we लीकेज have में in इजीली पेपर लीक हो सकता है। in the हाँ recent year वो हमने तो हो सकता है, बट पेपर लीकेज को हम रोक सकते हैं सो डैट अगर हम ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जैसे गेट देखा एग्जाम होता है या एचपीसीएल या जो भी ऑनलाइन एग्जाम में पेपर लीकेज का संभावना बहुत कम रहता है। तो मैं Yeah, चाहता I हूँ agree with but yes, your I point, agree but with जो there you. is a भी fault एग्जाम Like on with online that. exams, In even the if even the we online do exam, JEE the mains conduct like take exam, the online example of JEE and there all. are most of many cases the that institute are are captured looking as for a the fraud online. case in the actually exam. So online what about online them and papers. how to resolve for those candidates who are enter as a fraud in the JEE exam? Because there are many cases we heard from the past I years think exam. for organizing any exam, the tender should be given to the organization or authority, which is very clear to their focus on the exam. Like NTA, TCS, they have opportunity, Good, but in the yes. I think they have a good experience. NTA is not a good exam conducting body. As we see in the NEET 2024, various number of students getting rank 1 up to 67 students were getting rank 1. That's why in India there are only two main exam conducting body, which is TCS and IBTS. Guys, we should also talk about the I ethics. agree. Very good point. I think to avoid paper leakage, I think we should to make I mean to say a strict law Yeah. to avoid the Yes, paper yes, leakage. yes, I Yes, agree. yes. इसका Guys, सबसे we ज्यादा should इफेक्ट There are the students guys, many we should strict talk law, about but the mindset ethics पड़ता है aspect of like paper leak. if you got fraud in the exam, then there are many strict rule by the court of the India that are you never appears in the previous in the upcoming exam, or you are like you Yes. must go to the jail for that many years, and you are Guys, we default should from the I guys, we think should talk about the I think ethics you can aspect say of paper leak.
we should I talk about agree, the I effect agree, on I but think the paper I I problem want is think to not say in the this, that, law only. The but I problem is want in to the say that implementation as well. the people, the Whenever a people center who is are found engaged in having such the practices, they people. often say that candidate cannot be punished because the cameras were not working and we have no proof that he Yes, did yes, yes. cheat in the exam. there Yes, is a That lot is cameras the should be lot most of prefer problem. I want to say something that the people who are जो एग्जाम को जो पेपर लीकेज करवाते हैं, स्टूडेंट नहीं, जो पेपर लीक करवाते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। स्टूडेंट जो पेपर लीक करवाने में पैसा देते हैं उन पर भी कार्रवाई हो, और ऐसे स्टूडेंट का मुझे कैंडिडेचर खत्म होना चाहिए मुझे और लग इसके उन इफेक्ट पे पर भी बात कर हेलो सकते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ इसका इफेक्ट स्टूडेंट के लाइफ पे पड़ता है। जो स्टूडेंट yes, सिंसियरली वो हाँ यार prepare कर रहे हैं सिंसियरली प्रिपेयर yes. करते हैं इस एग्जाम के लिए, उनके माइंड पे काफी असर पड़ता है। और तो लीक पे ये भी एक बहुत सारे मुझे एडवांटेज है कि डिप्रेशन मुझे कुछ में भी लगता चले है जाते हैं, स्टूडेंट बहुत अब सारों मुझे में कहीं पैसे बाहर और रहते टाइम हैं, की मुझे कमी लगता ट्रैवल होता है। करके वो मोटिवेट्स आते अदर हैं मुझे एग्जाम देने के मुझे लिए, लगता और है मुझे लगता है कि बाद एक में तरीका वो ये भी एग्जाम हो कैंसिल सकता हो है कि जाता है। जैसे कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, वो भी एक अथॉरिटी बनाए, गवर्नमेंट अपनी एक कमेटी बनाए, जब तक कि एग्जाम शुरू होता है और जब तक खत्म नहीं हो जाता है, वो टीसीएस को, एनटीए को एक निगरानी रखती रहे कि बाकी कोई कभी दिक्कत ना आए बीच में, उससे एक राइट डायरेक्शन में पूरा एग्जाम कंटिन्यू हो पाए। I So I agree, want I to Government say should take the I that agree with this point. government should take the I want initiative to so that the career of the हाँ student can be saved. A वो lot किसी of student is going depression and they are wasting their यस यस money and as well I as time for the preparation of so the exam. So government should also actually take the I want to say initiative. I something think to avoid that the main cause of the paper leak is from the ground level, that from यस where यस the paper is formed, that is the main cause मेन where the paper is leaked. There is no chance to paper leak whenever the paper is going to the exam center or going to the anywhere. The main cause is that from the initial part of the paper formation is the main cause of the paper leak. So what do you think, what can be done to decrease the Yeah, part for that I for think that apart from that These paper? online institutions will security help we this should responsibility lot in of this. that Interest to I for think that provide high I think government security should take the and responsibility of Government paper should leakage. government should make committee यार, that's why I'm saying Yes, yes, नहीं, government I should meant make I a meant to say I committee want to also for think they online should say increase the something regarding the supervision. if someone multiple of people should set the paper and if by that someone we guys, defrays, I so would like to government add should able to something. prevent I the mean to say leakage from the they point of source. Yeah, for तो एग्जाम online सेंटर exam, we पे should भी add the स्टूडेंट्स involvement of AI and cloud computing, and machine learning, and Internet of Things should be one done more for point that I the want to highest security conclude, like that. Yeah, that for yes in high yes the security, yes we should be involved in the AI. For high security of online exams, we should involve the involvement of AI, cloud computing, and Internet of Things should be done. But for online papers, And there more should be a collab. Yeah, but for so offline papers, there should be a good collaboration with the trusted banks so that the paper should be kept in the proper security with a locker good also. video one locker with a good one proper video one more footage, clue like that I so have. that the इवन ऑन so द the एग्जाम faulty would सेंटर also One thing I I agree, want to I add highly that we agree have with to your is point, increase the Anjit. smarter security than Can we yeah change and the design of the paper, like for, like suppose we are 5 students that are appear Hmm. in the exam, and we change the number of the questions, and we can also yeah change the paper some set questions, so there might be yeah less chance to for less yes. cheating in the exam in the center. So Yeah, paper setting should be done in the highest. But Too many paper sets should be made. एग्जाम design सेंटर is Too आल्सो many मैनी sets should be made. I, पेपर but के we लिए already have मतलब I we think already proper have coordination should be 4 to 5 sets of exams. Still the paper leakage problem is there. Just yes, Yes lags because of the security reason, right? It lags I because of want the to say security that reason, Yes, I and think I so that this should be increased, and also the proper measure should be taken, and the penalty should be given, and also the fine and the imprisonment increase year should be increased for the faulty, so that no one should do like that. I think Yeah. proper coordination should be happen because Yeah. someone is designing paper, someone is I mean to say who distributing paper, and Hmm. the center in which happening is paper. The proper coordination Also, should I be would like to add one thing happen. here. Many times we have seen that the question bank itself is not leaked. The exact paper that is going to come to the center, that paper is leaked. So the point yes of leakage has to be the center only, not the point of source. Also the paper leaks from some platform like Telegram or this should be I think given Banned. This proper should be measures, properly and monitored. yeah,
like telegrams like this Uh, type of channel should be banned or should be given proper measures. Yes, if I yes. any think we organization have to involved in conclude. the We paper have reached leaking, the time. Yeah, I think yes. we have reached the time. We should conclude now. Yes, sir. So, in the conclusion of the paper leakage in the India, from this discussion we found several points that are resist the paper leakage in the India. These points are basically from uh, we should see the ground level, root level of the paper formation. Yeah. We should set a committee for that, and after that, in the exam centers, like they if the paper is conducted in the offline mode, we can change the design of the paper, like we interchange the questions, uh, we interchange the examination centers if the probability of paper leakage is very high. And these are the some main points that are we conclude in the group discussion that are prevent from the paper cheating. And the government should take the a initiative for this paper leakage, so that we can improve our education quality from this. And thank you for this. Thank you for the GD. Yes. Are we done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. All right. Okay. Still from all other topics you guys have discussed in a good manner. बट कुछ लोग बिल्कुल पार्टिसिपेटिव नहीं थे, जैसे अमन ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। आई थिंक रचना, आपने अपने आप को विजिबल भी नहीं किया है। पता नहीं आप बोल रहे भी हो या नहीं बोल रहे हो। आई डोंट थिंक सो आप बोल रहे हो। अमन और रचना बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। सत्यम भी आज बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, वो बार बार ज्वाइन और उनका हो रहा था। अमन ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ओके, राजेंद्र बोल रहे थे आज। किरण का भी पार्टिसिपेशन ठीक था। अंकुश का ऑन एन एवरेज था। सुमन का भी ऑन एन एवरेज होता है। एक तो सुमन हंसता रहता है बीच में। नहीं, नो मैम, नहीं है। नहीं, मैं देख रही हूँ, मैं तो यहीं बैठी हूँ ना, तुम्हें ये लगता है मैं कैमरा बंद करके चली जाती हूँ? फीस मार्केट मैम बन जाता तो हंसी आ जाती ऐसा है नहीं। ना? यस मैम। हंसना नहीं होता है इतना, ठीक है। ओके, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, सुमन बोलने की कोशिश करता है, बट उसके पॉइंट बहुत ही रिदमिक होते हैं। रिदम का मतलब समझते हैं, जैसे पोएम्स होती है ना, रायम। तो मैंने आपको बोला है कि पहले भी ना थोड़ा एक्टिव होके बोलो, कि अगर जितनी देर में तुम इतना रिदमिक होके बोलो, उतने में सब लोग अपने पॉइंट रख देंगे। तो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, ठीक है। फोन को या लैपटॉप को सामने अच्छे से रखो, अच्छे से बैठो, और उसके बाद पॉइंट दो, ताकि आपकी बॉडी की, आपकी जो एनर्जी है वो बोलने में लगे, ना कि फोन को होल्ड करने में या फिर लैपटॉप को होल्ड करने में, राइट। उत्कर्ष बहुत कम बोल रहे थे, एक दो बार बोला है, तो वो भी बैठ के सुन रहे थे कि चलो बोलने देते हैं सबको, कोई बात नहीं, ठीक है। नैना वॉज स्पीकिंग, अंकिता वॉज स्पीकिंग, अंजीत, टेंकू एंड किरण ने बोलना शुरू किया है कल से थोड़ा सा। आज थोड़ा ज्यादा मतलब पार्टिसिपेशन था। तो इट वाज गुड वट एवर यू गाइस हैव डिस्कसिंग, कि वो जो है रूट कोज उसका पेपर में ले, जहाँ पे पेपर बनते हैं बेसिकली, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे है, करप्टेड है, ब्राइब्स लेते हैं लोग, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने बोले। क्या क्या हो सकता है इसमें? इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, या फिर पनिशमेंट होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। मतलब स्कूल लेवल पे उसको वो करना चाहिए, कॉलेज लेवल पे, जिस भी लेवल के। अब जैसे आपको पता है, स्कूल कॉलेज में इतने पेपर लीक नहीं होते जितने की कॉम्पिटेटिव एग्जाम लीक होते हैं, राइट। ऑलरेडी वैसे कंपटीशन बहुत है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के लिए, या प्राइवेट के लिए भी लगा लो, बट स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद आप मतलब ये पेपर लीकेज एंड ऑल हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इसके पॉइंटर्स पे, रूट कोज, आप लोगों की डिस्कशन के बाद और जो मेरे पर्सनल व्यूज हैं, और जो जैसे हम इस टॉपिक को बेसिकली डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ इसके कॉजेज क्या है, फिर इसके अफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। कॉजेज फर्स्ट ऑन द ग्राउंड लेवल, दैट इज बेसिकली वी द पीपल, दैट जो ये छोटे छोटे मंत्री और ये होते हैं, ठीक है। मंत्री से भी पहले आते हैं टीचर्स, प्रोफेसर्स, जो ब्राइब लेने के चक्कर में, कमीशन लेने के चक्कर में ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई ना कोई स्टूडेंट होता है कि आप फेक आइडेंटिटी के साथ किसी और का पेपर देने जा रहे हो, या फिर उसको पेपर पकड़ाने जा रहे हो कि आंसर शीट दे रहे हो, या फिर क्वेश्चन पेपर पहले लीक कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा साथ में कहीं ना कहीं आता है डिजिटलाइजेशन, ठीक है।
वो कैसे, आपने वो रील्स देखी है जो बताते हैं कि स्टूडेंट्स को ये वेबसाइट नहीं पता, यहाँ से आप सारे पेपर निकाल सकते हो, ये वो XYZ, देखिए ना, वो बहुत आती है, मतलब बहुत एक्सेस में आती है कि हमें तो नहीं पता होता बेसिकली, बट जो जेन्युइनली उस रील को देखते हैं, फिर उसकी बायो में जाके जो भी वो लोग करते हैं, लिंक पे जाते हैं, फिर उनको वो ना चीज मिलती है। वो जो कंटेंट डिलीवर करते हैं, कुछ कंटेंट में मानती हूँ कि फेक होता है, बट सब कुछ फेक नहीं होता है। अगर आप डीप जाते हो, डेप्थ में जाते हो टेक्नोलॉजी के, तो यू विल फाइंड द नंबर ऑफ थिंग्स जो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, कि कोई साइट है या कोई वेबसाइट है या कुछ भी है, तो वहां पे वो चीज डली होती है या ऐसा कुछ है। सो लोग उसके थ्रू भी बहुत कुछ कर लेते हैं कि अच्छा हमने तो यहाँ पे स्कैन कर दिया, हमने यहाँ से पेपर निकाल लिया, यहाँ से क्वेश्चन निकाल लिया एंड ऑल दिस थिंग। ये जो गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी रिजल्ट आते हैं, ये ऑनलाइन ही आते हैं, कोई पेपर पे लिख के तो देता यस नहीं है। मैम। मेरिट लिस्ट आती है, लिस्ट आती है प्रॉपर, आप अपना रोल नंबर देखते हो, आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, क्या रैंक का है एंड ऑल लाइक दैट। जब रिजल्ट ऐसे डल सकता है, क्या क्वेश्चन पेपर नहीं डल सकते? किसी न किसी को तो पता होगा ना कि वो वहां पे डला हुआ है पेपर, डाउनलोड कर लो वेबसाइट से या कुछ भी है बेसिक, राइट? तो दैट काइंड ऑफ थिंग, ये एक बहुत बड़ा मतलब पैरामीटर है पेपर लीकेज में, एग्जामिनेशन लीकेज। इसके एग्जाम्पल सबसे अच्छा हमने, एग्जाम्पल्स आप लोगों के बहुत ही नॉर्मल थे, एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देखे होंगे अभी, वो जो जेई नीट वाला पेपर हुआ था, आई थिंक सो 12th स्टैंडर्ड वाला जो होता है बेसिकली, उसमें कुछ बच्चे जो है उनका सबका टॉप 1 रैंक आया था, 57 स्टूडेंट्स किसी ने आउट बोला ऑफ। भी था मैम। हाँ ठीक, मैं बोला था मैम। हाँ, तो वो मतलब मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत पता नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ चीज का, लेकिन वो 57 लोग एक जगह पे मतलब कैसे हो सकते हैं, लाइक हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब एक ही बंदा हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं है कि 57 का एक ही टाई भी होता तो 2 लोगों के बीच में होता, 57 के बीच में थोड़ी ना होता, राइट? सो दीज आर द एग्जांपल्स कि हाँ वो ऐसा क्या कर रहे हैं, कैसे वो चीजें लीकेज हो रही, नॉट लाइक दैट। उसका इफेक्ट जैसे नैना बोल रही थी और आप लोग सब लोग बोल रहे थे कि जो बच्चे सच में एफर्ट्स डालते हैं एग्जामिनेशन के लिए, जिनका एज बार आ जाता है, अब लेट्स सपोज एक बंदा 25 ईयर्स का और वो पिछले 4 अटेम्प्ट दे चुका है, उसका 5th अटेम्प्ट है, और वो जनरल कैटेगरी से, उसका वो लास्ट अटेम्प्ट है, उसमें पेपर लीक हो जाए या एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ भी करप्टेड हो जाए, कुछ भी करप्शन, उसको तो नेक्स्ट चांस भी नहीं ना मिलेगा, उसका तो सारा मेहनत मतलब सारे एफर्ट उसका वेस्ट हो गया, राइट? अभी एक बच्चा मेरे को कुछ दिन पहले बता रहा था इंटरव्यू में दैट कि मैम मैंने पॉलिटेक्निक लेक्चरर में मतलब मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, लेकिन फर्स्ट रैंक के बाद मुझे लगा कि मेरा तो सिलेक्शन पक्का है, मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, मैं क्रैक कर दूंगा लाइक दैट, और इंटरव्यू से पहले ही उन्होंने कुछ ऐसे करप्टेड रीजन डाले, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, जिससे कि उन्होंने वो पोस्ट को खत्म कर दिया, राइट? उन्होंने पोस्ट को बेसिकली खत्म कर दिया, राइट? तो दे सेड कि मैम उसके बाद उन्होंने कभी वो चीज निकाली ही नहीं है, तो दैट इज बेसिकली किसी ने तो उसको कमीशन लेने के लिए, ब्राइब लेने के लिए, ऑल दीज थिंग्स के लिए किया होगा ना, समझ आई बात? तो ऐसे एग्जांपल्स को आप सेट कर सकते हो, फाइन। अफेक्ट और क्या पड़ता है? मोटिवेशन डाउन होती है, ठीक है, मोरल लूज होता है, दोबारा से आप उस चीज को जाते ही नहीं हो, आप सोचते हो कि छोड़ो यार, क्या मैंने पब्लिक सेक्टर के लिए प्रिपेयर करना है या क्या करना, आई थिंक इट्स बेटर कि मैं स्टार्टअप करूँ, कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ या कुछ करूँ, ठीक है? वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ऑल्सो आपका कितना ज्यादा लॉस होता है, जो आप ये फॉर्म भरते हो 1000 रुपए के, 1200 रुपए के, ये भी तो कहीं से आते हैं ना, ये तो है नहीं पेड़ पे लगे हुए हैं, और एक बंदा बहुत सोच समझ के फॉर्म फिल करता है, जाते हैं तब भी ऐसा कुछ तो मतलब वो स्टेप लेता है, राइट? सो दैट इज द थिंग बेसिकली, एम आई क्लियर? ये सारे पॉइंट्स Yes, आपको ma'am. ना एक फॉर्मेट में डिस्कस करना था। अब आप लोगों को पता तो था जब मैंने आपको बोल दिया टॉपिक में कि बेसिकली यू नो ये टॉपिक है पेपर लीकेज एंड इन इंडिया, व्हाट आर द कॉजेज एंड इफेक्ट, तो आप लोगों ने उसी तरीके से उसको स्टार्ट किया। इंट्रो थोड़ा सा और स्ट्रांग हो सकता था, ठीक है, कंक्लूजन भी थोड़ा और बेटर हो सकता था, कंक्लूजन भी मेरे को थोड़ा सा ऐसे हिला हुआ ही लग रहा था, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप लोग, बट आप लोगों को ये तो पता था कि 2 चीजें डिस्कस करनी है, बट वो सारे मिक्स आप डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? कोई कुछ एग्जांपल देते, कोई क्वेश्चन क्या राइज में, मतलब क्वेश्चनिंग फॉर्म में, जैसे कि अंजित ने बोला क्वेश्चनिंग फॉर्म में, ठीक है, अच्छा था। अंकिता का भी मतलब वो पॉइंट उसके उस तरीके के होते हैं, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। कि पेपर सेट, मतलब कितने हम सेट्स भी बनाते हैं, ABCD सेट, CBSE बोर्ड में, 12th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट स्टिल वो चीजें हो रही है। इसका मतलब उसने बोला भी था कि वो ग्राउंड लेवल पे जहाँ पे पेपर बन रहा है वहीं पे कुछ हो रहा है भाई, उन्हीं में से कोई बंदा होगा ना जो वहां पे बैठा है, जिसकी वहां ड्यूटी लगी है, नॉट लाइक दैट, राइट? सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर देयर। अभी अगर आप इस चीज को खोल के देखोगे ना नेट पे, पेपर लीकेज इन इंडिया, आपको इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट मिलेगी कि किस साल में कितने पेपर किस पोस्ट का लीक हुआ है, ठीक है?
तो आप वो एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो। जब आपको ऐसा टॉपिक डिस्कस करना है तो यू कैन टेक इट आउट एन एग्जाम्पल, ठीक है, कि ये एग्जाम्पल है कि 2024 में जेई नीट का पेपर इस मंथ में इतने पेपर क्लियर मतलब लीक हुए थे, ऐसा कुछ लाइक दैट। अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक आई थिंक सबको समझ आ गया, बस वो थोड़ा वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब मैं फीडबैक की बात करूं, अंकिता के पॉइंट्स अच्छे थे बट फेशियल एक्सप्रेशन पे थोड़ा सा आपने काम करना है अंकिता। तो लुक्स लाइक वेरी लाइक मतलब ऐसा लगता है कि स्लीपी स्लीपी से, है ना। तो फाइनल्स मतलब वहां जाके नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो चलो कोई बात नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड कि आज गुरुपुरब है, छुट्टी भी होती है आई थिंक, ठीक है, and यहाँ पे बेचारे सारे बच्चे जीडी लगा रहे हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद बेसिकली आई वुड से राजेंद्र का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था, ही इज वेरी एक्टिव। मैं ऑनेस्टली बोलूं, राजेंद्र, इट्स वेरी गुड थिंग दैट यू आर इम्प्रूविंग योरसेल्फ, ठीक है। इसको और मतलब अपने आप को एक्टिव बनाना, दैट कि आप फेस वो बनो कि हाँ वो बंदा बोल रहा है, ठीक है। किरण स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो और ज्यादा पार्टिसिपेट करे, एंड हिज पॉइंट्स आर लाइक बहुत अच्छे थे उनके पॉइंट्स भी। अमन चलो ट्रैवलिंग करा था, सत्यम का बार बार नेटवर्क इशू हो रहा था। अंकुश, आप इतने जगह लगा चुके हो और अभी भी लगा रहे हो कॉन्टेंट्स, आप हमेशा इनिशिएट करते हो, दैट इज द गुड थिंग कि मैं कंक्लूजन करूं या मैं इंट्रो करूं। बट आपके जो पॉइंट्स ना बहुत ही ऑन एन एवरेज होता है, मतलब ठीक है, इट्स ओके। 60% वाला उसको मैं 60 से 80% लेके जाना है, ठीक है। मतलब बहुत लंबे पॉइंट्स नहीं बोलने हैं, छोटे बोलो बट थोड़े ज्यादा बोलो, मतलब 3 बार तो एटलीस्ट मिनिमम सबको क्लियरली पार्टिसिपेट करना चाहिए। आई मस्ट से आई अंडरस्टैंड इतने सारे कैंडिडेट्स हैं तो उसमें 2 बार पार्टिसिपेट कर लो, वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। बट स्टिल यू ऑल नीड टू बी गाइस ट्राई कि एटलीस्ट मैं अपना 3 टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन दूं। वो एक आइडल टाइम होता है जीडी में पार्टिसिपेट करने। सुमन, सेम गोज टू यू। आप पार्टिसिपेट करने का कोशिश बहुत करते हो बट कर नहीं पाते हो, तो मतलब वो बोलते बोलते वो रास्ते में रह जाता है, जब तक वो डिलीवर नहीं होगा तो वो काउंट नहीं होगा, राइट। दैट यू नीड टू बी टेक केयर ऑफ। नैना का ठीक होता है, वो मतलब बहुत लिमिटेड से पॉइंट बोलती है या जो भी है, वो सेंटर में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करती है, बट इट्स गुड, बट इट कैन बी मोर बेटर कि वो ऐसा लगे कि हाँ यार 1 या 2 बंदे तो ऐसे होते हैं जीडी में जो बहुत ही तगड़े पॉइंट देते हैं और मतलब वो पूरी टीम को लीड करके रखते हैं। दैट कैन बी थिंग। अभी अभी सारे न्यूट्रल से हैं। अंजीत का पार्टिसिपेशन इंप्रूव है, जब फर्स्ट डे उसने जीडी या जीटी लगाया था तो ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट कि कैसे स्टार्ट करना है, राइट, बट ही नाउ ही इज फाइन कि कैसे स्टार्ट करना है, ऑल लाइक दैट, ठीक है, एंड कैसे पॉइंट्स देने, दैट इज गुड। टिंकू, आप आई थिंक फर्स्ट टाइम आए हो जीडी में, ठीक है। टिल यू हैव टेकन द अपॉर्चुनिटी कि मैम मैं लाइक कंक्लूजन करूंगा या इंट्रो करूंगा, आपने आई थिंक मेरे को लग रहा है थोड़ा थोड़ा दोनों ही किए। एक का फॉर्मेट थोड़ा ठीक था बट लास्ट में इट वाज नॉट लाइक टू गुड, आई वुड से। कंक्लूजन में बेसिकली आपको सबके बिहाफ पे करना होता है, एंड उससे पहले आप थोड़ा बोल सकते हो कि ओके थैंक यू एवरीवन, दिस वाज अ वेरी गुड डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन, स्ट्रॉन्ग डिस्कशन, ठीक है, और वी वर डिवाइडेड ऑन द टॉपिक, ऐसा कुछ करके। तो ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई वुड लाइक टू से yeah, I would like to conclude this group discussion। तो जब सब लोगों ने डिस्कशन की है, जो भी पॉइंट्स दिए हैं उसमें से कुछ भी जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है 3-4 पॉइंट्स वो दे दो, ठीक है, वो उनको समराइज कर दो एंड लास्ट में थैंक यू। एम आई क्लियर? और जब फीडबैक मिल रहा होता है तो और किसी से बात नहीं करनी होती है, ठीक है, एंड जो मैम बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना होता है, ठीक है, क्योंकि मैम आपको देख रहे हैं, आप किसी और से बात कर रहे हो, राइट। अगर आपको किसी और से बात करनी है तो फिर आप जीडी लगा के जा सकते हो, क्योंकि अगर आपको फीडबैक नहीं लेना तो फिर व्हाट द पॉइंट टू मैं बात कर रही हूँ। तो मेरे को दिख रहा है कि आप आई थिंक बार बार किसी को आंसर कर रहे हो या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ। सो जब आपको फीडबैक मिल रहा होता है जस्ट फोकस ऑन दैट, ऑलराइट। एंड जो मैंने अभी आपको बोला उस चीज को इंप्रूव करना है थोड़ा, समझ आए? क्लियर है एवरीवन? तो जीडी के टाइम पे आपके कैमरास ऑन होने चाहिए, आपका माइक ऑन होना चाहिए, और आपका जो भी XYZ काम पीछे चल रहा है उसको बंद कर दीजिए अगर आपको जीडी लगाना है तो। बट सिर्फ बैठने के लिए जीडी मत लगाना, क्योंकि कैंडिडेट्स भी फालतू हो रहे हैं, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ। 8-9 लोग हैं, अच्छा जीडी हो सकता है अगर आपने सिर्फ मतलब बोलने के लिए बोलना, वो नहीं करना है, अच्छी प्रैक्टिस के लिए जीडी अटेंड करो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फाइन, आई होप जीडी क्लियर हो गया होगा सबको। पैनल पे जाके प्लीज वेबसाइट को विजिट करो यूओपीडिया की, वहां पे नंबर ऑफ टॉपिक सॉल्व पड़े हुए हैं पीडीएफ की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाए हुए हैं, सर ने बनाए हुए हैं, प्लीज जाके उसको रीड करना, सो दैट आप लोगों को आइडियाज पता लगे कि हाँ जो सर ने लिखे हुए हैं, मैम ने लिखे हैं, तो हम उसको बोल कैसे। क्लियर है? ठीक है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आती है कि पैनल नहीं एक्सेस हो रहा है, वेबसाइट पे मिल नहीं रहा है या कुछ भी, तो एग्जीक्यूटिव को कॉल करो, प्रीति मैम इज देयर, आप उनको कॉल कर सकते हो, उनको पूछ सकते हो।
स्टिल किसी को नहीं मिल रहा है तो मेरे को टेक्स्ट करो कि मैम नहीं मिला, हमें किसी ने नहीं बताया, फिर मैं देखती हूँ। डन? ठीक है, समझ आए? बट प्लीज जीडी लगा रहे हो, दैट इज योर प्रैक्टिस। आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हाँ आप मैम के साथ जीडी लगा रहे हो, आप मेरे साथ जीडी लगा रहे हो, कुछ छुपया मैम में, है ना, हम दोनों बेसिकली जीडी जीटी आपके ले रहे हैं। उसके अलावा आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है गाइस। सेल आया हुआ है, 10 दिन की बात है, 21-22 तक को तो आई थिंक खत्म हो जाएगा। कब है लास्ट डेट सेल की? 2 दिसंबर 30 के आसपास। 30 के आसपास है। हाँ सर, मेरे को मेरा लगता है 22 को है मैम। हाँ, मेरे को लगता है मैम कि मैंने ऐसा सुना था कि 22 तारीख तक सबके खत्म हो नो जाएंगे। मैम, हाँ मैम मेरा 22 से 28 को है। स्टार्ट है मैम। मेरा 28 को है मैम। 21 से स्टार्ट है। मैम अच्छा 21 से स्टार्ट है, 30 तक है मैम, 30 तक। मतलब वही ना 28 को 10 मेरा दिन हो गए, वही 10 दिन हो गए 21 से 30 तक, है यस ना। सो इट्स बेटर कि पहले ही प्रिपेयर कर लो, फिर इंटरव्यू पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना, क्योंकि जीडी जीटी केस स्टडी हो जाएगा, पर इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। यस मैम। ठीक है, चलो